अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्ब हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आइए चलते हैं म्यूज़िक एकेडमी और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है। आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है हाय हाय मेरा तो इस गल रोड़ा निकलन डे है। क्यों बेटा? एडा सुरीला बाबा भी चला जाना है। दुख तो इस गल दा है बुजुर्गो, ताडे तो बाद ये कुर्सी वेली हो जाएगी। हाय बाबा जी जे बचना जे ते दा इको ही हल है, बसुरे हो जाओ। बस ਐਵੇਂ ਬਸੂਰੇ ਹੋ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੌਕਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਸਿਹਤ ਬਣਾ। वैसे मैं माफी चाहना वा बुजुर्गो, जी बेटा जी। पिछले कोई 25 ईयर से ताने आपकी कब्र में है और तुसी फिर गाना शुरू कर लिया है, दुनिया मेरी जवां है। चलो अंकल दुनिया दा ही कह रहे ने, बाबा आप ते 17 दे ने। ਬਾਬਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। और उन्हें आगे सिर्फ आवाज नहीं मारनी, बूए नूं ठुड्डे भी मारने ने। हर दूजे दिन ते मैं किसी पार्टी नूं मिन्नतां तरले करके मोड़ना वा। एक नूं तो मैं हक के ये किया कि मैं क्या हजूर हुण बाबा जी किथे वॉक गए जी, चले गए ने उन्हें जिथे जाना सी। वो ना मुराद मेरी गल सुन के गया नहीं, मैं ते अंदर आ गई, गली च फिरदा रहा ते बाबे होरां नूं उन्हें उत्ते कबूतरां नूं दाना पांदियां वेख लिया। दोबारा उन्हें बूहा खड़काया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਸ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਅੰਕਲ ਐਂਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ, रूह भटक रही है। अंकल बाबा जी ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹ ਦੇ, ਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ 5 रुपये ਦੇ। वैसे बाबा जी, आपको इस उम्र में शर्म आनी चाहिए ऐसे गाने गाते हुए। नहीं नहीं बेटा जी, गलत मतलब ना लवो, इश्क दी गल नहीं करन डे, जुती दी गल करन डे। आ ते हुण नवीं लैके आए ने, पुरानी जुती बेचारियां नूं किन्ने दिन लगदी रही है, ओ किसे वेखी नहीं। अखीर टुटी है ते सारी जग नूं पता लग गया, क्योंकि एक पैर पा के ते किन्ने दिन फिरदे रहे। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਖੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। हाँ जी, जुम्मा पढ़न जान ते उत्थों जुती चुकन ना ते घर आके कहंदे ने जुम्मे बाजार तो लैके आए। बाबा जी की जूती अक्सर टूट जाती है क्योंकि ये अपने नाप की तो खरीदते ही नहीं। कोई शागिर्द तरस खा के बाबा जी को जूती दे जाता अपनी, वो बड़ी होती है, ये छोटी होती है, वो फिर टूट जाती है। जूती हो या खुस्सा हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਪੀਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ
2 ਜੋੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਮਤ ਕਿ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹ 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿਨੇ, ਜੁੱਤੀ 15,000 ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ 5,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੁੱਤੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈਂਦਾ ਤਦ 15,000 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਗਦ ਲਵੇ ਤੇ 1500 ਦੀ ਏ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ 25,000 ਵਾਲਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਸੌਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਇਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਆ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਵਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਗੁਰਦਾ ਫਰੋਸ਼ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜਨ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ? ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਪ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਅੰਕਲ ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਏ? ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਧਰੇ ਸੜਕ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਜਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਡੱਬੇ ਖਾਂ, ਜ਼ਨਾਨਾ ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਜਗਾਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਬਿਬ बन के पींदा है। यार ऐसे तो ना कहें, बाबा जी मेहनत कश आदमी और आप उन्हें फ्रॉडिया बनाकर पेश कर रहे हैं। ਐਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਆ ਡੱਬੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ 65,000 ਦਾ ਵੇਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿਕਅਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਿਛਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਸ 3-4 ਨਿਛਾਂ ਚ 65,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। वैसे बाबा जी ये तो बताएं कि अभी आप कुछ देर पहले 25,000 का जूता खरीदने का कह रहे थे, तो ये इतने पैसे आए कहाँ से? ये मैं बताता हूँ जी कहाँ से आए इतने पैसे बाबा जी के पास। आप सब अपना अपना बंदोबस्त कर लें। लो जी तरीक गवाह है, ये बच्चा जदों भी आया मनूस टाइम पे है। लो जी बाबे ना 100 इख्तलाफ अपनी जगह, पर ए बाबे दी गल बिल्कुल सच है कि बच्चा है मनहूस ही। ये बच्चा तो जिस दिन जम्मिया सी ना कारगिल दी जंग लग गई। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਟਾਵਰ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਜ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਚਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ओ बेटे ओ पुत्र, ओ इस बच्चे की अंधाधुंध नहूसत अपनी जगह, मगर पूछने तो दो बेटा, हम सारे क्यों अपना अपना बंदोबस्त कर लें जी। ओए बाबे हो रही ਆਪਣੇ ਜੇ ਨਾ ਵਾਕਫਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। और रोक ये किते ਉਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਹਮਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਛੱਡ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲੈ ਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਸੌਦੇ ਚੋਂ 10,000 ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਭ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ। ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 25,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਨਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। मैं तो अखबार च ला ताल्लुकी का इश्तिहार देने लगा। इस बाबे के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसके साथ लेन देन आप खुद कर सकते हैं। उस्ताद जी कित्थों देना जे लोकां दा ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ? मैं ते कहना 100 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਸਾੜ ਦਈਏ। ओ कोई अल्लाह को खैर मांगे, उंज मुंह जुबानी कह दे कि बाबा पार हो गया।
ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੋੜਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕ ਓਏ। ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਾਇਆ ਸੀ। यानी कि प्रोग्राम भी किया, सब कुछ किया, जिधर गईयां बेड़ियां उधर गए मला, हाथ मिला। अंकल वो हमारे शागिर्द की पेट्रोल वाली तजवीज अच्छी थी। और कुछ हया करो ओए, आखिर मैं ਤੁਹਾਡਾ कुछ लगना। आप इस वक्त हमें सिर्फ जहर लग रहे हैं। हम आपके लिए पैकअप हो गए, आप हमारे लिए नथी हो गए। यानी इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि मैं तुम्हारा कुछ लगना वा। जब तौर में इकट्ठे कर रहे थे कमीशन के चक्कर में, उस वक्त नहीं आपको जहन में आया कि हम भी आपके कुछ लगते हैं। बाबा जी आप फनकार आदमी हैं, आप किन चक्रों में पड़ गए? आपने ये फाइलें बेचने का काम शुरू कर दिया। और पुत्र मैं ते इस नैश दे कहन ते काम फड़ लिया। ओ बाबा तेरी भी खैर होवे, किदे कहन ते फराड वाला काम फड़ ले। मुंह धोन लगिया इनू कोई सिगरट नहीं फड़ांदा। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਾਡ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ फंक्शन ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ मर गया। नहीं जी, फंक्शन नहीं मरता, उस्ताद जी भूल रहे हैं। वो जनाब जिस सोसाइटी में हमने फंक्शन बुक किया वो ये नहीं दूसरी है। ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन हले है। हाँ जी हाँ जी, और मैं किसी फंक्शन नहीं जाना, जा दौड़ जा इथों। नाम मुरादा जरा मेरे को काम कराते ही मेरा घरों बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा। जाना भी ना, जरा को बाहर निकले ना तो फराडियां ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਫੜਨ ਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। बाबा जी इस लड़के ने आपको जिस मुसीबत में फंसाया है, आज का गाना भी इसी पर होना चाहिए। लो बाबू जी हुने लवो। चरिया आदमी है तू, चरिया आदमी है तू, बंदा सादशी है तू, बंदा सादशी है तू, चरिया आदमी है तू, चरिया आदमी है तू, बंदा सादशी है तो, बंदा सादशी है तो। दादा तेरा चोर था, दादा तेरा चोर था, झूठा चौधरी है तो, झूठा चौधरी है तो, झूठा चौधरी है तू। खुशियों पे बुलाऊं क्या, खुशियों पे बुलाऊं क्या, मुंही मातमी है तू, बंदा सादशी है तू, बंदा सादशी है तू। टेढ़ी है दीवार ही, टेढ़ी है दीवार ही, कैसा मिस्त्री है तू, बंदा सादशी है तू, बंदा सादशी है तू। तेरा क्या इलाज हो, तेरा क्या इलाज हो, मरीज दायमी है तू, बंदा सादशी है तू, बंदा सादशी है तू। वाह वाह बाबा तेरे सदके जावा। आहा बाबा जी वेखी गुस्से च तेनू किस दिन मौला ने ले जाना। वाह खच्चे छोड़ दी सभी, खच्चे छोड़ दी सभी, लेकिन आखिरी है तू,
बंदा सादशी है तो बंदा सादशी है तू बंदा सादशी है तू बंदा सादशी है तू लोड मांगती सबा क्या कहने लोड मांगती सबा लोड मांगती सबा कितनी मीसनी है तू कितनी मीसनी है तू कितनी मीसनी है तू ख्वाहिशों के खून का ख्वाहिशों के खून का डेटा 4G है तू बंदा सादशी है तू बंदा सादशी है तू बंदा सादशी है तू सच है क्या निकाब में सच है क्या निकाब में लड़के देखती है तो बंदा सादशी है तू बंदा सादशी है तू क्या कह बंदा सादशी है तू मैं सदके जावा बंदा सादशी है ले बेटा लो पुत्र जी बाबा जी ने तुहानू गाना भी सुना दिता ते तुहाडी मालिश भी कर दी नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा जो बाईपास होने लगा है मैं पैसे आपको ज्यादा दे दूंगा, मेरे दिल के ऊपर मेरी महबूबा की तस्वीर का टैटू बनवा दो। नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आपको और फैशन की दुनिया के लोगों को आगाह करना चाहता है कि एक नया और इंतहाई खतरनाक फैशन दुनिया में फैलता जा रहा है और वो जिस रास्तों पे चल निकला है अल्लाह माफी दे। वो कौन सा फैशन है जी जिसने कानों को हाथ लगवा दिए? अभी सुने, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। जिल्द के टैटूज से उकताकर चीनी नौजवान अपने दांतों पर टैटूज बनवाने लगे। नौजवानों के नजदीक जिल्द के टैटूज अब पुराना फैशन हो गया है और दांतों के टैटूज खुद को जाहिर करने का एक नया और जबरदस्त तरीका है। दांतों के टैटूज में लोग अपने महबूब के नाम का हर्फ या लकी नंबर या छोटा सा लफ्ज लिखवाते हैं। ओए होए होए, दांतों के ऊपर टैटू? जी यही तो आपको बताया है मैंने। आप देखे ना कि जिल्द के ऊपर जो टैटूज बनाते हैं, सलाइयां कढ़ाइयां करा रहे होते हैं। किसी ने इधर मोर बनाया है, किसी ने इधर कोई उकाब बनाया है, किसी ने बॉडी बिल्डर बनाया है, किसी ने थौड़ी बनाई है, किसी ने अपनी महबूबा का नाम लिखवाया हुआ है। मगर अब यार दांतों के ऊपर टैटूज बनवा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही अली मुमताज साहब, हर चीज से थोड़े अरसे के बाद बोर हो जाने वाली ये जो नस्ल है आखिर रुकेगी कहाँ? क्योंकि चंद साल बाद इन्होंने दांतों वाले टैटूज का फैशन जो है उससे भी अक जाना है। वो भी इनको पुराना लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। फिर ये क्या बालों के ऊपर टैटूज बनाएंगे या सर के मुख्तलिफ हिस्सों में उस तरह फरवा के वहां पे टैटूज तैयार किए जाएंगे? कुछ अरसा गुजरेगा फिर इन्होंने ये बालों वाले टैटू से भी उकता जाना है। फिर ऑपरेशन कराने ले कहन करेंगे कि ऑपरेशन ते कर ही रहे हो, ये मेरे गुर्दे ते एक टैटू बना देना। या भाई जी ये मेरा जो बाईपास होने लगा है मैं पैसे आपको ज्यादा दे दूंगा, मेरे दिल के ऊपर मेरी महबूबा की तस्वीर का टैटू बनवा दो, ताकि मैं कसम उठा सकूं अपनी महबूबा से कि जानू तुम मेरे दिल के अंदर रहती हो। बंदा पूछे महबूब का नाम पत्थर या कोयले से लिखने या दरख्त की छाल पर लिखने वाली बेवकूफी तो चलो समझ आती है। हाँ जी। लेकिन महबूब को याद रखने का ये कौन सा तरीका है यार
कि तुसी मुंह खोलो ते अगले दंद ते आर लिखा हो। ये आर क्यों लिखाया है? तुम्हारी भाभी का नाम रुबीना है। पता लगे महबूबा दे भरा ने कुटिया ते वो आर वाला दंद ही टूटा। ये दांत के ऊपर महबूबा का नाम क्यों लिखवा रहे हैं? ये साबित करना चाहते हैं कि मैं महबूबा को कच्चा खा जाऊंगा? अब बात तो वैसे गौरी ठीक कर रहा है कि भाई दांत के ऊपर महबूबा का नाम, यार हद हो गई है, वैसे हद हो गई है। वाह गोगे, तुम्हें तो आइडिया मिल गया है। तुम अपने दांतों पे लिखवा लो आई एम हंग्री। बहुत अच्छे, आई एम हंग्री। निरा सालन मांगदा फिर सीधा लहा यार दे जा सकिया। जुल्फी ते मुजफ्फर दे जिहड़े जिहड़े दंद ने, लफ्ज ते कोई पूरा आना नहीं, इन्हां दंदां ते नुक्ते ही बनवाने ने। अब पता ही नहीं लगना टैटू बनाया कि बोटी फंसी। अजीजी, ये जो तुम बालों के टैटूज की बात कर रहे थे, ये फैशन तो चल निकला है। लोग अब बालों को तराश कर मुख्तलिफ तरह के टैटूज पहले से ही बनवा रहे हैं। इत्थे रख, यानी मैं हाले सोचिया तो अगले बनाना भी शुरू हो गए। हाँ जी, ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पे ऐसे सिर देखे हैं। किसी ने सर के ऊपर वालों को तराश के गड्डी बनवाई हुई है, किसी ने हेलीकॉप्टर बनवाया हुआ है, एक बंदे ने तो हद ही कर दी, उसने सर के ऊपर एफल टावर बनवाया हुआ है। मैं देखो ना ये सारे पेरिस दा भार सिर ते चुकी फिरदा है। यानी ऐसी ऐसी अजीब शक्लें बनाई होती हैं अपने जिस्म पे, अपने सर पे। मुझे तो समझ नहीं आती कि यार इसका फायदा क्या है। यार जेम्स बॉन्ड टैटू कोई फायदा या नुकसान वास्ते नहीं बनवाते, ये तो शौक है, जैसे थैले को मिट्टी खाने का शौक है। यार गौरी साहब, बात यहाँ पे टैटूज की हो रही है और आप एक दूसरे की खुराक बता रहे हैं। तुम लोगों को सबको जानकर ये हैरत होगी कि ब्राजील में एक ऐसा टैटू आर्टिस्ट भी है जो टैटू में खूबसूरती लाने के लिए सुई धागे से टैटू बनाता है। लो बस फिर गर्मियां दे टैटू अलहदा बनन करनगे, सर्दियां दे अलहदा बनन करन। जदों टैटू बनान जाओगे तो अगले पूछणगे भाई जी सूती टैटू बनवाना है या रेशमी? अगले ने कहना नहीं भाई जी साडे इलाके च ठंड बड़ी हुंदी है, ऊन नाल बनाओ ताडी मेहरबानी। अगो टैटू आर्टिस्ट पूछेगा बॉर्डर छोटा रख दिया, नाल झालर ला दिया जी। और इस तरह की मशहूरियां होंगी इन आर्टिस्ट की कि भाई जी छोटी मार्केट च आर्टिस्ट बहंदा ना टैटू बनाने वाला, वो ते टैटू ते ऐसा सलमे सितारे दा काम करदा, वाह 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 वाह। और धागा ऐसा इस्तेमाल करदा कि हर सूट नाल मैचिंग हो जाती। अच्छा, इंसान तो टैटू बनवा ही रहे हैं अपनी जिल्द के ऊपर। आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक चीनी शहरी ने अपने कुत्ते पे टैटू बनवा लिया है। उसकी वजह से उस पे बड़ी तनकीद भी हो रही है। मुझे समझ नहीं आई कि यार कुत्ते के ऊपर टैटू बनवा के, कुत्ते बेचारे को तो पता ही नहीं होना कि मैं फैशनेबल हो चुका हूं। वरना उसको टैटू की समझ हो तो वो अपनी लैंग्वेज भी बदल ले। वो टैटू बनाने के बाद भौंके भी जरा मॉडर्न तरीके से। दूसरे कुत्ते उसे देख के एक दूसरे को कह रहे हो वाओ 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 वाओ। यार आप लोग जो अभी बालों के टैटू की बात कर रहे थे, आपको पता है कि लोग अपनी बिल्लियों की अब ऐसी कटिंग कराते हैं कि वो लगता है कि जैसे उसने जुराबें पहनी हुई हैं। बिल्ली की पूंछ के बालों की ऐसी कटिंग हुई होती है, को लगता है जैसे बिल्ली ने पीछे परांदा पहना हुआ है। देखो ना यार, वो बिल्ली घट ते मजाजन बहुत ही लगन रही होती। ऐसी ऐसी सोच आती है इंसान के ज़हनों में। मैं हैरान होता हूँ कि किधर को जा रहे हैं यार। वो एक दूसरे को फायदे पहुंचाने वाली सोचें। ये कौन सी सोच है यार कि तुसी हुण टैटू बना लिया है सारे पिंडे दे उत्ते, इस वास्ते हुण सर्दियां च भी तुसी बगैर शर्ट तो जान डे, नाल ठंड भी लगन डई है, नाल तुसी अपना जिहड़ा पैसा खर्च कीता वो भी बहा रहे। ऐसा बुरा नशा ये फैल गया इंसानों में टैटू बनवाने वाला। एक बरतानवी खातून है सैलून, अच्छा, उसने अपने जिस्म पे टैटू बनवाए हुए हैं और 20 बार सिर्फ टैटूज बनवाने की वजह से मुलाजमत से निकाली जा चुकी है।
लेकिन वो टैटू बनवाने से बाज नहीं आती, बल्कि वो उसकी इतनी आदी हो चुकी है कि हर हफ्ते 3 नए टैटू बनवाती है। और इस वक्त उसके जिस्म के ऊपर 800 से ज्यादा टैटू बने हुए। इस बाजी ने जिन्नी सियाही टैटू बनाने ते जाया कीती है, इन्नी पेपरां च कर दी, अज उन्हें CSS स्टॉप कर जाना सी। हाय हाय हाय। और भाई जी वो तो कहती है कि मैं अभी 46 साल की हूँ, अच्छा मैं 70 साल की भी क्यों ना हो जाऊं, मैं अपने जिल्द पे टैटू बनवाती रहूंगी, बनवाती रहूंगी। कड्डो मैनू नौकरी चो, कड्डो, मैं तो सीधा टैटू बनवा नहीं जाऊंगा, मैं नहीं हटना। जितने इसने अपने जिस्म पे टैटू बनवा लिए, इसको अपना नाम टैटू नहीं रख लेना चाहिए। ओ भाई जी ऑस्ट्रेलिया की एक खातून है 24 साल एम्बर ल्यूक, अच्छा, आंखों के ऊपर टैटू बनवाने की वजह से अंधी हो गई थी। उसके बाद डॉक्टरों ने को 3 हफ्ते उसका इलाज करा के तो दोबारा उसकी बिनाई ठीक की। डॉक्टर इस बात पे हैरान थे कि इसने पागलपन में अपनी आंखों पे ही टैटू बनवा लिए। जुल्फी दी कमर दे पीछे भी टैटू बने हैं जी। अच्छा जी, तुसी किथों बनवाया जी जुल्फी साहब? नहीं, भरजाई ने गर्म इस्त्री करके दे लाई सी। क्योंकि इस तरह के घरेलू टैटू की बात ना करो, वरना अभी सब लड़कों ने कमीजें उतारी ना तो सबके पिंडे पे कोई ना कोई टैटू नजर आ जाएगा। किसी को चिमटे का टैटू लगा होगा, किसी को वेलने का टैटू बना होगा, किसी की कांड पे शतूत की सोटी का टैटू होगा, स्वाय मेरे सबके टैटू होंगे। अजीजी क्यों झूठ बोल रहे हो? ये घरेलू टैटू का तो फैशन शुरू ही तुमसे हुआ है। सुन नहीं सकते तू ही सिर्फ इस वास्ते नहीं सुन सकते कि ताड़ी स्किन ते टैटू नजर नहीं आता। गौरी साहब सिर्फ टैटू दी पीड़ घट करने वाली दवाई खांदे ने। अच्छा, एक और आपको चीज सुनाऊंगा, ये तो कमाल ही है ना, मतलब ऐसी बेवकूफी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अच्छा, यहाँ तो हम लोग ताने देते हैं ना कि नाक कटवा दी मेरी, या ताने मारते हैं कि इस बंदे ने तो मुआशरे में सारे खानदान की नाक कटवा दी है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने शैतान का टैटू बनवाने के लिए अपनी नाक कटवा दी है। जी जनाब, ब्राजील से इसका ताल्लुक है। 44 साल ये शख्स है, माइकल इसका नाम है। अच्छा, देखो ना जरा, शैतान की तरह दिखने के लिए नाक कटवा बैठा है। अजीजी साहब, इन्हें अपना नक कटाया सु या शैतान दा? यार अपना बनाया है, अपनी शक्ल शैतान जैसी बनाने के लिए। शैतान होता फूफी ना पुत्र जितना उसने नाक कटा देना। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यू नो, मैं लाइट जलाता ही नहीं तेरा बांधा भी नहीं। और बेवकूफ, दिया जला के उसकी रोशनी में बुक रीडिंग करता हूँ। ठीक है, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं? हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। माशाल्लाह। ये बस ये नजर ही खा गई है जी हम लोगों को। नजर खा गई है? तुम बड़े संजय दत्त हो। नजर खा गई है। आहो, कादी नजर लग गई? यहाँ तुसी ताज महल च रहंदे हो। नजर तो अम्मा कहती है कि नजर उतार के तो मैं फीके की गाड़ से निकालती हूँ। अच्छा, मेरी अम्मा मिर्चें सड़ाड़ देती है। तेरी नजर क्यों लांदे ने? छोटे ऊंट जिड्डा तू है। तुम्हारी अम्मा नहीं तुम्हारी नजर उतारती है। वो क्यों उतारती है? तुम भी तो कनक की बोरी टुकने वाली चूई हो। यार फीके, तुम पर क्यों मामा मिर्चें साड़ती है? तुम कौन सा छोटे कॉलर वाला कोट पैंट पहनते हो? तो आप पैंट कोट पहनते हैं तो आपकी नजर साड़ के पहनाती हैं पढ़ वाले। मैं तो नजर प्रूफ हूँ। ओ यार, असल बात करके नजर लगी क्यों है? जरा बताओ तो सही उन लोगों को। कोई नहीं लगती नजर। जाने की अम्मा पता क्या कहती है? कहती है कि मेरे मुंडे ते कदी कपड़े भी छोटे नहीं होए। कहती है कि शुरू तो ही बचपन तो ही वही कपड़े पहन दिया मेरा मुंडा।
सानू ते दा कपड़ियां दा भी खर्चा नहीं हुंदा। ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਟਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। अडाम खड़ा मैं ना गुजते लगाओ यार हम टेंशन में है, परेशानी में बैठे हुए, तुम लोगों को जुगतों की पड़ी हुई है। ਕਾਦੀ ਐਂਡੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? तो जो हमने जो छाने ने रेडी लगाई थी वो रेडी भी उठा के ले गए गवर्नमेंट वाले। बताओ ना। ये रेडी क्या मतलब? रेडी वो जो ठेला होता है अच्छा वो अच्छा ना वेला फिरता था ना तो इसकी भी अम्मा परेशान रहती थी। अच्छा तो अच्छा ना भी मेरा दोस्त है ना ये हाँ बिल्कुल। तो ये कहता है कि मैं फिर रेडी लगा लेता हूँ। तो फिर इसने भी इसकी अम्मी ने कमेटी डाली हुई थी तो 15,000 की कमेटी निकली। अच्छा तो मैंने भी 4,000 रुपया मेरे पास था तो मैंने इसको आधा दे दिया। 19,000 हो गए। मैंने कहा तुम मेरा 4,000 बीच में डाल लो तो हम बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। तो फिर इसने रेडी लगाई थी, इनके घर रेडी पड़ी हुई थी। पहले इसके अब्बू लगाते थे ना तो वो फिर बीमार हो गए हैं तो वही इसने उसी रेडी के ऊपर वो सुआ वाली शकरगंजी लगाई थी। अच्छा तो अम्मा ने इसको आबाल कर दी थी तो इसने मोटे नींबू भी खरीद लिए थे और मसाला भी बना लिया था। तो इसने पहले दिन 3 किलो जो थी शकरगंडी वो और लगा के रेडी के ऊपर तो वो नहीं है सैडोना का प्लाजा उसके पास जो गली जाती है उसकी नुक्कड़ पे इसने वो उधर स्कूल भी है ना बच्चों का तो ये कहता था कि स्कूल के बच्चे बड़ी शकरगंजी खाते हैं शौक से। आप उस रेडी पे एक तोता रख लो, तोते को देख के बच्चे और ज्यादा खाने आएंगे। आप पागल हो गया है ये लड़का। तोता तो वो चूड़न वालियों ने रखा होता है शकरगंजी वाली रेडी तोता रख लो ते आधी शकरगंजी तोता ही खा जाए। तो फिर उधर रेडी लगाई है अभी 6 दिन हुए थे तो वो आ गए वो जो पीर फकीर महकमा नहीं है वो पीर फकीर नहीं पैरा फोर्स उसका नाम है। हाँ वो ये प्यारा फोर्स जेड़ी बनी है पैरा फोर्स पैरा जो मेरे ना कान खा उन्होंने तुम्हारी रेडी उठाई है मैंने उठाई है। उन्होंने आके इसकी उधर से रेडी भी उठवा दी है और इसको जुर्माना में 5,000 कर दिया। इसके पास नहीं था वो इसको पकड़ के भी ले गए थे तो 5,000 मलक साहब से लेके तो फिर उनको दे के तो इसको लेके आए हैं। तो क्यों गैर कानूनी काम करते हो? अगर इस तरह से करोगे सड़क पे खड़ा कर दोगे तो वो तो आके कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल नहीं तो वो जो सहडोड़ा का प्लाजे के आगे 5-6 रेडियां लगी हुई हैं उनको फिर क्यों नहीं उठाते? वो सहड प्लाजे वाले जो हैं वो अमीर आदमी हैं उनको कोई नहीं पूछता। जाने दे रेडी ला गए। मैं तो रेडी पे बैठा हुआ था जी, मेरे समेत रेडी को उन्होंने ट्रक में डाला और ले गए। उन्होंने जब फिर तुम्हें कहा था जुर्माना तो वो तो देना नहीं दिया तो फिर ले गए ना। तो ये अब्बा कहता है गरीब बंदे नु फिर उनकी मार छड़ो। यार एक कानून है उस पर अमल दरामद होना है।
जब कानून ये इजाजत नहीं देता है कि इस तरह सड़क पे खड़ा करो, रास्ता उससे ब्लॉक होता है, तो क्यों कानून की खिलाफ वर्जी करते हो? तो फिर मलक साहब कहते हैं कि अगर गरीब बंदियों को उठाते हैं इधर से सड़कों से, तो उन्होंने कोई ते काम करना है ना, फिर उन्होंने किधरे होर जगह दियो जिथे फिर रेड़ी लगा लें। तो जब कोई और जगह भी नहीं होती तो उधर से भी चुको रेड़ी है ना जी। तो फिर जब भी शुरू होती है गवर्नमेंट गरीबों से ही शुरू होती है। जो बड़े बड़े मलक साहब कहते हैं जो मगरमच्छ होते हैं उनकी तरफ नहीं ये जाते। तो आज तो गोगे ना मेरे यार प्रोग्राम जो मैनू कहते लेके पी के जड़ा मोटा मगरमच्छ कौन है। तो आप उनको बताया करें कि वो हस्बे हल्का दानश्वर है। मैं कहता हूँ कि आपको वो मगरमच्छ लग रहा है, तो कहते हैं कि जो ये साथ बैठा होती है ये क्या मगरमच्छ के दांतों में से खुराक निकालने वाली चिड़ी है। और भाई ये भी दानश्वर है, ये चिड़ी नहीं है। अच्छा तो फिर बना क्या रेडी का? ओ जी बनना क्या है, 19,000 रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया था। 19,000 का भी सत्यानाश हुआ और 5,000 रुपया जुर्माना भी भरना पड़ गया। और 3,000 की आप लोगों ने शकरकंदी रखी रेडी पे, तो 19,000 कैसे हो गया? चल दौड़। दौड़ता नहीं, मैं अफसर हूँ। अफसर बने हुए हैं, अफसर आप गरीबों के लिए ही बनते हैं। 3 किलो तो हमने शकरकंदी खरीदी थी, तो जो इसके अब्बे की रेडी उगड़ पड़ी हुई थी, उसका एक पहिया टूटिया हुआ थी, वो भी सही कढ़ाया है। ऊपर से 2 फटियां भी नहीं डलवाई थी। वो भी मिस्त्री को लैदा पैसे दिए थे। फिर बड़ा टोकरा लिया था, उसके अंदर शकरकंदी रखनी थी, वो भी सामान लिया है। फिर वो खट्टा भी लिया था हमने। ओ यार तो खट्टा की 8,000 का आ गया थी। नींबू मोटा लिए थे और शकरकंदी और टोकरा 19,000 रुपया लग गया। मुझे तो लगता है तुमने मेरे साथ भी फ्रॉड किया है। मैंने तो कभी हिसाब ही नहीं किया। और जितना मर्जी हिसाब कर लो, 19,000 से बढ़ता ही नहीं। पीके अब तुम दोस्त पर शक करोगे? ते अफसर साहब की बकवास कर रहे हैं। यार अफसर साहब बकवास करे भी तो ऐसे नहीं कहते कि अफसर साहब बकवास कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं कि अफसर साहब क्या गलत फरमा रहे हैं। अफसर साहब क्या गलत भौंक रहे हैं। यार तुझे आपे गल करो, समझो अफसर छुट्टी दे आज। यार अब ये पैसों का हिसाब घर जाके कर लेना। असल बात तो ये है कि ये पैरा फोर्स नाजायज तजावुजात के खिलाफ बनाई गई है। जो भी आते हैं तो जो पैसे दे तो उनको छोड़ देते हैं, तो जो ना देते चुको दिड़े पाओ नाले गालियां निकालते हैं, नाले बदतमीजियां करते हैं। तो मलक साहब कहते हैं कि इन्होंने सारा अपना गुस्सा ते अफसरी माड़ियां लोकां ते कड्ढनी हुंदी है। तो जो आगे से पैसे दे तो वो चलो जी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब कोई नई फोर्स बनती है या महकमा बनता है तो रिश्वत में कमी आने के बजाय, मामलात के ठीक होने के बजाय मजीद गड़बड़ हो जाती है, रिश्वत में मजीद इजाफा हो जाता है। अब जो रेडी लगा है उसको भी पकड़ रहे हैं। और मेरे अब्बे ने अब्बा नहीं जाता फैक्ट्री। अच्छा। वो बीमार होता है तो बीच में छुट्टियां करता है। तो हाजी साहब कहते हैं कि पहाड़ फीक इंजनी वाड़ा खांदा तू काड़ी लिया कर। तो फिर अब्बा कहता है कि ठीक है मैं कोई और काम कर लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ अब्बे को कि अब तुम बीमार हो तो तुम ना काम किया करो।
तो कहता है मैं कदों बमारा चंगा पलावा, हाय हाय। तो हमारे से चुप चुप के खांसी करता है। जब उसको खांसी आती है ना तो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है जोर से, तो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूं। तो कहता है कि फिर जे काम ना साड़े करिए तो रोटी किथों खाइए, हाय। साड़ियां केड़ियां मिलां चल जियां ने, ते मेहनत करनी है ते घर बह के भी ते हाय हाय ही करना है। अब फिर जिस दिन उसकी तबीयत ठीक होती है हाँ। तो वो उधर से पापड़ लेके ना, तो पापड़ों वाला टोकरा कंधे पे रख के तो फिर गलियों में फेरा लगाता है, तो उसका भी पापड़ों वाला टोकरा छीन लेते हैं। हाय। कहते हैं कि मोटे दे उत्ते रख के भी चीज़ां नहीं तुसी गलियां च वेच सकदे, सड़क ते खलो के। अब्बा कहंदा इन्हां दे प्यो दा मोटा है, मैं अपनी जान ते रख के बेचना वाला, हाँ। इन्हां नूं की तकलीफ है। बिल्कुल। कहते इन्हां नूं पता नहीं कादियां अफसरियां चढ़ गईयां ने। हाय। एक अब्बे का दोस्त बच्चियों के कपड़े हाथ में पकड़ के बेचारा बाजार में बेच रहा था। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਓਏ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈੜ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁੜਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਚ ਪਾਣ ਡਏ ਹੋਏ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बाजार गलियां खुलियां करनियां ने ते गरीब दा हाथ भी ते खुला करना। बिल्कुल सही। गरीब दे घाड़े च बिजली दा बिल आवे ते ओ बेचारा इंज परेशान हो जांदा जिवें बिल नहीं आया ओदा मुंडा मोटरसाइकिल थले आ गया। ठीक है, यू नो मैं लाइट जलाता ही नहीं तेरा बंदा भी नहीं। और बेवकूफ, दिया जला के उसकी रोशनी में बुक रीडिंग करता हूँ। दिया जला के पढ़ते हो, पढ़ लिखते तो जाएगा पर दीवे दे धुएं नाल तेरा होर सत्यानाश हो जाना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दो आदमी मिले अपना अली साहब, एक पुलिस वाला था, एक जरा सिविल कपड़ों में था, सादा था है। तो वो जो सिविल कपड़ों में था वो मुझे कह रहा है कि चंद साहब इसको जरा जुगत लगाएं। यार मैं क्या, मैं जुगत उनको लगा दूंगा तो जमानत मेरी फिर तुम कराओगे। अच्छा जी अली मुमताज साहब, मैं ऐसी बात तहजीब का जिक्र करना चाह रहा हूँ जो पिछले दिनों हमें क्रिकेट स्टेडियम में नजर आई है जी। ये जो इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया और फिर ग्राउंड के अंदर भी लोग फजूल सी आवाज़ें कस रहे हैं और ऊपर से खिलाड़ी हमारे भी उनको इशारे कर रहे हैं मुख्तलिफ और एक दूसरे को मतलब अपनी तरफ से जलील करने की कोशिश की जा रही है। हम ये भूल जाते हैं कि भाई इस वक्त हम किसी और जगह पे खड़े हैं, वो कोई और काम था, वो कोई और चीज थी, मतलब जंग हुई, हार गए, जीत गए, जो भी हुआ। अब आप उसका गुस्सा ग्राउंड में क्यों निकाल रहे हैं? बिल्कुल। आप ग्राउंड में किस चक्कर में ये कह रहे हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाना? यही पता चला ना जी कि उन्होंने रेफरी से कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो रेफरी ने फिर आगे हमारे खिलाड़ियों के क्या जी कि आप हाथ ना मिलाइएगा। हाँ जी। भाई जंग हुई सी, हार गए तुसी, या हम नहीं कहते इस वक्त चलो कि जो भी आपके साथ हुआ उसका गुस्सा ग्राउंड में क्यों निकाल रहे हैं? बिल्कुल। ये हम भूल जाते हैं कि ये बंदा जो है, ये जिस शोबे का है, उस चीज का ताल्लुक इस वक्त इस माहौल में बनता है या नहीं। हाँ। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं या जो कॉमेडियंस हैं, कॉमेडी करते हैं टेलीविजन पे या प्रोग्राम्स में या स्टेज पे, जी जी, वो जब किसी और जगह गए होते हैं, किसी मेहमान के तौर पे किसी फंक्शन में,
हाँ जी। तो लोग उनको यही बिहेव कर रहे होते हैं उनके साथ कि ये हंसाने वाले हैं और अभी बस ये हंसाएंगे। हाँ। या उनके साथ बिल्कुल उसी तरह फ्री हो रहे होते हैं जैसे वो काम करते हुए आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ फ्री हो रहे होते हैं। जी। भाई अभी वो बेचारा नहा धो के महंगा सूट पा के परफ्यूम ला के घड़ी छड़ी बन के ताडे ब्याह ते आया है। हाँ। अब तो उसको कॉमेडियन ना समझें या उसके साथ कॉमेडी बिहेव ना करें, ना करें, बिल्कुल। मजाहिया अंदाज में तो ना उसे रिसीव करें। हाँ जी। ये हमें नहीं समझ आ रही। और खास तौर पे ये जो हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं ना जी, जी जी, इंडिया में भी ऐसा ही है, बेशुमार है, पाकिस्तान में भी यही बिहेव है हमारी कौम का, हमारी अवाम का। जी। मतलब ऐसे ऐसी मजाहिया बात कर देते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है, मुंह देखता रह जाता है कि अब इसको मैं इसका क्या जवाब दूं। जैसे वो 2-3 दफा मैंने ये वाकया सुनाया हुआ है। मैं और इरफान खूसट साहब वो गाड़ी में थे और इरफान साहब पेट्रोल डलवाने के लिए रुके एक पेट्रोल पंप में। वो पेट्रोल डाल के बंदा जब पैसे जैसे लेने लगा हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी नजर पड़ी इरफान साहब पे, तो कहता है आज तो बड़े सीरियस हो जनाब। तो इरफान साहब कहते हैं बस यार आज जरा तबीयत खराब है, नहीं तो तेनों पता है पेट्रोल पवांदा तो मैं बड़ा नाचना हूं। भाई मेरा मतलब है एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ पेट्रोल डलवा रहा है, हाँ। तो ये क्या तुक बनता है इस फिक्रे का कि आप आज तो बड़े सीरियस हैं। हाय। उस पे तो यही जवाब बनता है ना कि भाई अगे केड़ा मैं पेट्रोल पवांदा डांस करना बिल्कुल। या तेन जुगता करना। एक और भी मैंने बात सुनाई हुई है, वो ऐसे याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि हज करने गए हुए थे कवि खान साहब मोहतरम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। अब वो एक इंतहाई संजीदा आदमी थे अपनी लाइफ में और बड़े ही प्यारे, किसी से कोई वादा घाटा करना ही नहीं, ना ही किसी से कोई ऐसा जुमला कहना है कि किसी की दिल आजारी हो। सारी जिंदगी हमने देखा है। हाँ जी। अब हम लोग हज करने के लिए वहां पे तवाफ कर रहे हैं खाना काबा का। जी जी। तवाफ के दौरान यार एक बंदा कवि साहब को कहता है तुसी भी हज करन आए। हाय। अब क्या हालत होगी एक ऐसे एज के बंदे की कि यार ये क्या फिक्र है। और नाराज हुए, फिर फौरन संभल गए बेचारे। कहते हैं कि यार हम नहीं हज कर सकते। क्या मतलब है आपका, आपको ही सिर्फ फर्ज है हज। साथ ही वो एकदम ना बाबा जी लाइट आदमी थे, खाने काबे के गिर्द हैं, अल्लाह से मांगे, तो ऐसे करके फिर चल पड़े। सो हम लोग फिक्रा फेंक देते हैं। अच्छा एक्टर से ही ऐसा नहीं है जी। ऐसे एक्टर से ही नहीं है। एक मेरा सहाफी दोस्त है, बड़े सीनियर सहाफी हैं, बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं। जी जी। वो बेटे की शादी पे हैं, बारात लेके लड़की वाले के घर गए हुए हैं और निकाह खान आया है निकाह पढ़ाने के लिए। अच्छा। और वो कहते हैं कि निकाह खान आया बैठा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि अब निकाह शुरू हो जल्दी से। हाँ। तो कहते हैं निकाह खान बैठा है, उसने ऐसे रजिस्टर खोला है और साहब शुरू हुआ है ये वो। तो वो साइन करवाते हुए ना जी कहता है जी कि दूल्हे के बाप कौन है। तो कहते हैं मैंने वो गवाह के तौर पे या किसी तरह भी साइन करने के लिए उसने रजिस्टर उधर किया, तो वो उनको पहचान लिया उसने। अच्छा। तो कहते हैं कि वो साइन करवाने की बजाय मुझे कह रहा है कि जनाब है तो कुछ दसो हुकूमत दा की बनेगा। हाय। तो कहते यार ऐसे लेते मैं मुंडा विहान आया, मैं इलेक्शन लड़न नहीं आया। तो कहते कि मैं उसका मुंह देखना शुरू हो गया कि भाई तू निकाह पढ़ा दस्तखत करा ते गल मुका। मतलब साफी को अक्सर ये सवाल किया जाता है, वो बेचारा दही लैन गया है तो उन्हें पूछ लेंगे ने भाई जी आ की बनेगा, महंगाई बड़ी हो गई है। ओ यार उन्हें दही दे तो घर जावे आप अगला। मतलब बड़ा पुठा सा सवाल कर देते हैं। आ जेड़ा बंदा फड़िया गया है वाकई ये ते केस ठीक नहीं जी। यार जाके किसी जज को पूछ लिया, इसलिए वो बेचारा अपना सौदा लैन आया, मार्केट आया है, उसको अपना काम करने दो। इस तरह के जो अजीब अजीब होते हैं ना जी वाकयात, जी जी, वो देख के और सुन के बड़ा ही अजीब महसूस होता है, बड़ी हैरानगी होती है कि हम क्यों नहीं अभी तक ये समझ पाए। ये क्यों इस तरह का जुमला हम कस देते हैं या इस तरह की बात कर देते हैं। हाँ जी। कि अगला बेचारा भाई उसकी एक जॉब है, वो अपनी जॉब पे जब होता है इस तरह का काम करता है। हाँ। अब वो जॉब पे नहीं है, अब कहीं फंक्शन पे आया है या खाना खा रहा है, होटलिंग कर रहा है या किसी
तकरीब में बैठा हुआ है जी तो उसको आप उसकी जॉब के हवाले से पूछना शुरू हो जाएं या उसका इंटरव्यू शुरू कर दें हाँ तो ये नहीं ठीक। सही नहीं ये बिल्कुल बड़ी ही बुरी बात है और ये कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं मगर ये हम लोग नहीं समझ रहे। हाँ जी खास तौर पे हमारे पंजाब में ये है। मैंने देखा है कि कराची की तरफ आप जाएं ना तो वो लोग प्यार करते हैं, हाँ फोटो भी बनवा लेंगे मगर कोई ऐसी फजूल बात नहीं करेंगे। सही पंजाब चूंकि जरा खुली डुली तबीयत का है हाँ जी और हम फौरन फ्री हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल दूसरे से फौरन फ्री हो जाते हैं। हमारी एक आदत है वो कह लें कि एक प्यार है हाँ मगर मेरा ख्याल है कि इस प्यार को कंट्रोल में रखना चाहिए, सही ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखें ना कि वो जो पीछे बैठे हुए हैं स्टेडियम में खिलाड़ी, हाँ जी हाँ जी वो हारिस रऊफ को जिस तरह की आवाजें लगा रहे हैं जी जी वो यार क्रिकेट में उन आवाजों का क्या काम, बिल्कुल क्या तुक बनती है। वो फिर भी वो भी आगे से आकर के ऐसे कर रहे हैं हाँ है जी। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बड़ी फजूल बात है। आप जिस जगह पे हैं, जिस माहौल में हैं, जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आए हुए हैं उसके हवाले से ही उसी जिम्मेदारी में रहें। बिल्कुल सही आप किसी और जगह की बात उठा के किसी और जगह पे ठोंसने की कोशिश मत करें। हाँ वाकई कई मरतबा लोग ऐसी बेमौका बात कर देते हैं जिससे सूरत हाल बिगड़ जाती है। लेकिन अभी अजीज़ी जो बात पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से उससे बात की जाए तो शुरुआत जो है वो तो भारत ने की, क्योंकि उनके कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, फिर उनकी टीम ने हाथ नहीं मिलाया, फिर उनकी तरफ से जो उनकी सपोर्ट में तमाशाई आए हुए थे उन्होंने आकर ऐसे जुमले कहना शुरू कर दिए कि हारिस रऊफ ने उनका जवाब दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूं ना जी, वो भारत हो या हम हो या कोई भी हो, भाई बेमौका बात नहीं करनी नहीं करनी चाहिए। मैच हो रहा है यार, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट के हवाले से एंजॉय करो। हाँ आप क्यों आप फजूल जंग का गुस्सा ग्राउंड में लेके आ गए हो? जी बिल्कुल जी जी लोग तो बेटाइमी और बेमानी और ऐसी बात कर देते हैं कि मुझे दो आदमी मिले अपना अली साहब, एक पुलिस वाला था, एक जरा सिविल कपड़ में था, सादा था है। हाँ हाँ तो वो जो सिविल कपड़ में था वो मुझे कह रहा है कि चंद साहब इसको जरा जुगत लगाएं। ओए, यार मैं क्या, मैं जुगत उनको लगा दूंगा तो जमानत मेरी फिर तुम कराओगे? यार मुझे नज़ला जुकाम हुआ था, मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गया हूँ तो डॉक्टर ने मुझे सिरप लिख के दिया। तो जो मेरे साथ मरीज बैठा हुआ था वो कह रहा है सिरप शीशी वाला ना लेना, ड्रम लेना। ऐसे तरह हो गई मैं भी डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर साहब नुस्खा लिख रहे ने ते पिछों कंपाउंडर कहंदा सर जी इन्हू कोई वड्डी गोली ना लिख के देना है ते संग च फस जाएगी। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।